Okay, we're beginning 10 a.m. with some breaking news coming in. Brendan McCullum has smashed the fastest 50 in World Cup history, getting the landmark of only 18 deliveries. In fact, McCullum beat his own record of 52 of 20 balls, which he smashed against Canada in the 2007 World Cup. McCullum took charge right from the start, hitting a 6 of only his second delivery. Okay, Boria Majumdar now joins us on the phone line. Boria, Brendan McCullum continuing to entertain. Carnage, that's what it is, Sanket. I mean, it's been complete carnage. 77 of 25 deliveries with 7 sixes. Now, that is unbelievable. England has just been sort of, thumped, crushed, decimated, devastated, whatever you want to call it. I mean, it's a top team. England is a top team, and they have just been taken to the cleaners by New Zealand here. 123 all out, and then England is sort of, they're staring down a 40-over defeat. That kind of thing, it has never happened in World Cup history. Stephen Finn went for 49 runs of 2 overs, Stuart Broad 18 of an over. This is an unbelievable performance as far as New Zealand goes. I can tell you, Sanket, New Zealand is telling the world, take notice of us. We are definitely one of the favorites. Absolutely. Thanks very much, Boria Majumdar. So, great stuff happening in the World Cup. Brendan McCullum scoring his fastest 50 ever in the World Cup history. All right, on to the big floor test today. All eyes are set on Patna today as embattled Chief Minister Jitan Ram Manjhi will face the trust vote to save his throne. Both Nitish Kumar and Manjhi will fight it out to prove their numbers on the floor of the assembly. Yesterday, the BJP announced that 87 MLAs will vote in support of Bihar Chief Minister Jitan Ram Manjhi. Let's quickly now go across to Patna. Let me hand it over to my colleague Rahul Kamal, who joins us from the Vidhan Sabha. Rahul, it's over to you. Thank you very much, Sanket. Huge amounts of chaos and tumult here on the front lawns of the Bihar Vidhan Sabha, where the floor test is expected to take place around noon. Let me try and show you what's happening around us. Right behind there is where all the Janata Dal United MLAs have sat down on a protest. They're wearing black masks on their face. They've got this black cloth. Some of them have masks. They're saying that they will not participate in the governor's speech. The governor's speech will happen around 11 a.m. They're saying that they will not participate. All of them have picked one corner of the lawn, and that's where they're sitting. Here, the police preparing for the guard of honor for the governor, which will be done once he comes around 11 a.m. That's going to happen here as well. But essentially, we saw also huge clashes, just verbal clashes between leaders of the BJP and the JDU as they were coming in. The BJP leaders, of course, are in the floor of the House waiting for the floor test to begin, and they want the governor to speak, while the JDU MLAs are standing out protesting. I'm joined now by a JDU MLA, and I want to understand, ये आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप लोग अंदर जाके गवर्नर का भाषण क्यों नहीं सुनते? नहीं, देखिए, आज का दिन बिहार के इतिहास में एक काला दिन है और एक महामहिम राज्यपाल ने संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधानों का धज्जियां उड़ाई है, उल्लंघन किया है। आज किस सरकार का वो बजट अभिभाषण पढ़ेंगे? और हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश जी सारे कंबाइन नेता गए थे जब मिलने के लिए महामहिम से, उन्होंने ये बात कहा कि नहीं, ये बात सही है कि अब अल्पमत की सरकार है, फिर भी किस दबाव में महामहिम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैं बीजेपी के विधायक के सामने रखना चाहता हूं कि जो भाषण गवर्नर साहब पढ़ने वाले हैं, मैम, ये किस गवर्नर क्यों मांझी इस वक्त कौन सी पार्टी में है यही क्लियर नहीं है, उनके पास कितने नंबर हैं ये क्लियर नहीं, तो किस सरकार का जो एजेंडा है वो गवर्नर साहब बताने वाले हैं? देखिए, यही तो संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर दी है। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ही यह संकट की स्थिति ला दी गई है कि विपक्ष पक्ष वाले को विपक्ष की भूमिका में कर रहे हैं। यही सभी संकट है। बाकी राज्यपाल जी का अभिभाषण तो उसी सरकार में, जिस सरकार में दोनों जनता दल के हैं, और उनके ही कार्यकाल की बखान हमारे महामहिम राज्यपाल जी करेंगे। इसलिए इसका विरोध तो एक नाटक है। और देख रहा था अभी बीजेपी के विधायक जब आ रहे थे वो उकसा रहे थे जेडीयू वालों को, मतलब तो मारपीट की नौबत नहीं, मारपीट की नौबत हम लोग कभी, भारतीय जनता पार्टी के लोग मारपीट के पक्ष में नहीं है। हम लोग अपना बहुमत करेंगे, लेकिन अब व्यवस्था इस प्रकार से फैलाई गई है अध्यक्ष के द्वारा
और राज्यपाल के भाषण का आप 2001 का आप ये करिए कि 2001 में भी 7 दिन का समय मिला था जिस समय नीतीश जी को आज फिर से 7 दिन का समय दिया गया है। तो कौन सी अनहोनी राज्यपाल महोदय ने किया है कि राज्यपाल महोदय के भाषण का प्रतिकार करना, उनके भाषण को नहीं सुनना और उनके बारे में अनाप शनाप बकना, ये सारे लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं जनता दल यू के लोग। और ये इतिहास बनेगा बिहार में। ये इस सदन की आज जो व्यवस्था है, अभी देख रहे हैं कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। The seating arrangement is in fact very interesting because all the JDU MLAs, 98 of them who are on the side of Nitish Kumar will be in the opposition. The BJP 87 MLAs will be in the opposition. The 22 RJD MLAs will be in the opposition. You will have only 12 MLAs. Jiten Ram Manjhi, his ministers, the 6 MLAs who support him. तो ये तो बड़ा अटपटा है कि मतलब विपक्ष में 200 लोग बैठे होंगे, सत्ता पक्ष में केवल 12। और ये जो बात कर रही है कि स्पीकर तो बहुत हद तक नीतीश जी के फेवर में बायस रहे हैं। ना गवर्नर ना स्पीकर, दोनों कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहा, दोनों जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी मदद कर रहे हैं। नहीं, देखिए स्पीकर के ऊपर आरोप बेबुनियाद है। और कल आरोप बेबुनियाद क्या है? उन्होंने उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि जनता दल यू विपक्ष में है, सबसे बड़ी पार्टियां हैं और ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टियां को ही विपक्ष का दर्जा मिलता है। और जब ये मांझी जी की खुलकर समर्थन कर रही हैं तो वहां पर सत्ता पक्ष में बैठने का इनकार करना इनका एक नाटक है। ये अब जीतन राम मांझी, आप लोग सत्ता पक्ष में जाके क्यों नहीं बैठ जाते? नहीं, सत्ता पक्ष में हम लोग केवल समर्थन कर रहे हैं। आप याद करिए कि हम लोग VP सिंह साहब को भी हम लोगों ने बाहर से समर्थन किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल समर्थन कर रही है, हम सरकार में नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम लोग समर्थन करने की परंपरा रही है और केवल सरकार। आप चाहते हैं कि मांझी एक दलित आइकॉन बन जाए जिसको आप दुनिया बिहार भर में घुमाएं ताकि वो नीतीश कुमार का चुनाव में वोट। आई डोंट बिलीव दिस कि ये महादलित को जिस प्रकार से अपमान किया गया है, उस अपमान के साथ हम लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्सर आप इतिहास देखें, जो कमजोर होता है उसके साथ हम खड़े। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि बार बार दलित आइकॉन का अपमान किया जा रहा है कि एक ये भावना बन रही है बिहार के दलितों के बीच जो आपको चुनाव में नुकसान पहुंचा। देखिए यहाँ एक दलित का नुकसान की बात नहीं है, बिहार की नुकसान हो रही थी, बिहार की 11 करोड़ की आबादी की नुकसान हो रही थी। इन लोगों को मांझी जी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चाहिए, बल्कि बीजेपी का एक प्लान गेम है। मांझी सरकार नहीं, बल्कि हमको मांझी का वोट चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, जब मांझी जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, जो पीएमओ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ था, केजरीवाल का हुआ, अन्य लोगों का हुआ, तो मांझी का प्रेम था। तो पीएमओ से प्रेस रिलीज में मांझी जी और देश के प्रधानमंत्री का फोटो रिलीज क्यों नहीं हुआ? क्या वह महादलितों का अपमान नहीं था? तो इस तरह बीजेपी एक नाटक कर। कौन जीतेगा आज आपके हिसाब से? क्या होने वाला है? देखिए, मेरे कहने से अब तो फ्लोर पर पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी आपको जीतने की उम्मीद नहीं जीतने की उम्मीद क्यों? मैंने लड़ाई के पहले ही हम हार क्यों स्वीकार करें? लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। वाले हार की बात कर रहे हैं, जेडीयू वाले किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों को सिर्फ डर एक व्यक्ति से है, जिस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी अभी बहुत ज्यादा भयभीत है। उस भय से जीतन राम मांझी के अल्पमत सरकार को समर्थन कर रही है, जिस पर बीजेपी लगातार ये बोलती थी कि बढ़ते अपराध, बलात्कार की बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, कानून। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं पुराने बयान देख रहा था बीजेपी लीडर्स के, क्या आपने मांझी को नहीं कहा, बीजेपी जेडीयू की सरकार को नहीं कहा, अब उसी आदमी का आप सपोर्ट करने वाले? ये तो एकदम पॉलिटिकल। नहीं, नो, नॉट पॉलिटिकल, बट जिस प्रकार से नीतीश जी ने नीतीश जी के पहले जब भारतीय जनता पार्टी जब अलग हुई, तब से आप देखे होंगे हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी और उन्होंने ही जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बनाया। हमने यही कहा कि पपेट के रूप में उसका प्रयोग ना हो। और आप आइए, सरकार में इतने हत्या, लूट, बलात्कार की घटना घट रही है तो आप सामने देखिए। लेकिन जब देखा कि इन्होंने फिर से उसको महादलित जीतन राम मांझी जी को इंसल्ट करना शुरू किया, तो निश्चित रूप से हमको लगा कि ये कुछ दूसरे प्रकार की योजना चल रही, तभी हम लोगों ने समर्थन किया। महादलित हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट लुक ऑल्सो अंदर में, हाँ देखेंगे कि क्या आप तो अंदर जा रही है तो वहीं बैठने वाले हैं धरने पे पीछे। तो नहीं जाएंगे क्योंकि राज्यपाल जी का पता नहीं अब क्यों विरोध है, जब क्यों आप ही की बात को रखने वाले। पहले भी ऐसी परंपरा रही है। तो कह रहे हमारी है नहीं ना हमारी बात है। वेरी लगा के बैठना, हम लोग शांति अभी ये सीख लिए हैं, इन्हीं लोग से तो पूरा देश अब सीख रहा है। जनता दल की है उसका तो पूरा देश जान रहा है। आज भी पूरा देश किया है, भारतीय जनता पार्टी अपराध किया है। ये दोहरी चरित्र है इनकी। सेंस ऑफ
the political games that will be played out on the floor of the assembly in a short while from now. I want to show you the security arrangements. I've been to several assemblies all across the country. Never have I seen such intense security arrangements. The Bihar Armed Police, paramilitary forces, they've all been brought in. There's a huge fear that there might be some kind of clashes between the BJP and the Janata Dal United legislators when the floor test does begin. Sanket, we'll of course keep coming back over here. The preparations for the Guard of Honor almost ready. The JDU MLA is there in the corner. It's all happening here in the front lawns of the Bihar Vidhan Sabha, and that's where we'll be reporting from all through this morning. Thanks, Sanket. Take it away. Right. Thanks very much, Rahul. We'll, of course, come back to you when there are more JDU MLAs outside, because quite obviously, as you mentioned, not many of them interested in listening to the governor's address. Thanks very much, Rahul. It's time for a short break on First Up, but we'll be back with this story and a lot more. Remember, the big focus here on Headlines today also remains the case of corporate espionage. More on that after the short break.